Playing Tiku's role has been very challenging, but she has been such a big support in the process, and she has been there on the sets and even off camera and during the process of building Tiku. कि हम दोनों एक ही जगह से हैं, मतलब इन द सेंस एक ही इंस्टीट्यूशन से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मेरे सीनियर हैं, 10 साल सीनियर थे वो। तो काफ़ी रहा हूँ मैं उनके साथ, तो एक अप्रोच भी एक कुछ इस तरह की सेम हो जाती है किसी परफॉर्मेंस को लेके। पेस पे मत मारना भाई, यही ऑफिस है। हाँ, वो एक बार हुआ था मेरे साथ पंगा। एक्टिंग तो थी हमेशा से ही मुझ में, बट वो एक्टिंग लाई डांस ने है मुझ में। सो आई थिंक डांस को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। आज खाना नहीं खाएंगे आप? लग तो नहीं रहा, अब मैं खाऊंगी, भूख लगी थी। भूख लगेगी नहीं आज, मैं बता रहा हूँ ना। तारीफ ही होने वाली है आज मेरी। आज मैं इतनी तारीफ खिलाऊंगा ना आपको। Hello everyone, you're watching OTT Play Showreel and this is Aishwarya, and today I'm very excited to have a conversation with Nawazuddin Siddiqui and Avneet Kaur for the film Tikku Versheru. Hello, welcome to OTT Play. Thank you. Thank you. You know, at the trailer launch, Kangana Ranaut, who's the producer of the film, she said that she was supposed to do this film a few years back with Divine Lovers and all. And she was supposed to star in that. And now after a few years, you are being approached to play the lead role. Does it come as a sense of pride to you and also an added pressure that you are kind of stepping in the shoes of what Kangana was supposed to play? Yeah, definitely there is pride in it, definitely, because it's ma'am's role that I got, and what better could have been as an actor, you know. And she selected me, she saw me, and she saw that I was worthy of this role. So playing Tiku's role has been very challenging, but she has been such a big support in the process, and she has been there on the sets and even off camera and during the process of building Tiku. So I think ma'am's support and her guidance was the thing that really kept me going and made me understand more about the character, because she was playing Tiku first. So I think just the fact that she was doing this role herself and she's given this to me was a really, really big opportunity and a really big achievement for me. And there was also nervousness and there was a pressure, because there's a huge responsibility, you know. But I think being on set with Nawaz sir and his experience that he had shared with me and his support made the process really easy for me. So yeah. And sir, like Kangana mentioned, it was Irfan sir who was earlier approached for the role, and recently even Irfan sir's wife had said that he had read the script of Raat Akeli Hai also. So what do you have to say about this cosmic connection that he was asked to play a role earlier and you eventually doing it? What is the connection you have with the actor? I mean, you both were considered as one of the best we have in the industry. एक वो टेस्ट की बात होती है कि चूँकि हम दोनों एक ही जगह से हैं, मतलब इन द सेंस एक ही इंस्टीट्यूशन से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मेरे सीनियर हैं, 10 साल सीनियर थे वो। तो काफ़ी रहा हूँ मैं उनके साथ, तो एक अप्रोच भी एक कुछ इस तरह की सेम हो जाती है किसी परफॉर्मेंस को लेके। और रात अकेली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने की वो फिल्म जब मेरे पास आई। और ये भी इरफान भाई करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि वही सेम स्क्रिप्ट्स जो हैं, और इसके अलावा भी 1-2 स्क्रिप्ट्स हैं जो मेरे पास आई हैं जो वो करने वाले थे वो। तो डेफिनेटली अच्छा लगता है कि अब मेरे सीनियर भी हैं और अब ग्रेट एक्टर रहे हैं वो। इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। The film is a love story and it's also an ode to the city of Mumbai. I mean the city itself plays a character. We have seen a lot of movies where the city itself plays a character. What is the importance? Like, how do you see Mumbai as a character in your life, in your real life? How do I see Mumbai as a character? Yeah. It's I don't know as a character, but it's a dream city. So I think I would give that title to it. Everybody has a dream here, has a passion here, and
has an urge to complete, you know, their goals, and they have their dreams, their passions. So I think it's the dreamland, I would say. हाँ सही, बिल्कुल अभिनीत ने बिल्कुल सही कहा है, इट्स ड्रीम लैंड एक्चुअली। यहाँ पे यहाँ यही आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने सपने लेके आते हैं, लोग पूरे हो जाते हैं, यू नो। और एक शहर की अपनी एक तासीर है, कितनी अच्छा शहर है ये, कि आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत कम शहर होंगे अपनी कंट्री में ऐसे कि जहाँ पे ये फ़ीमेल के लिए बहुत सेफ़ है, यू नो, कि अगर वो 2 बजे भी रात के कहीं जा रही हैं तो आपको बहुत सेफ़ है उनके लिए। तो क्योंकि ये बरसों लगे इस चीज़ को बनाने में यहाँ पे, तो हर तरीके से सेफ़ है हमारा ये शहर जो है मुंबई, हमारी कर्म भूमि भी है ना, तो और क्या कह सकते हैं। सर आपने पहले बताया था कि कैसे परमिशन लीजिए, दैट सीन फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम अ रियल लाइफ इंसिडेंट व्हिच यू हैड सेड अबाउट, एंड यू हैव बीन अ जूनियर आर्टिस्ट before being the Nawazuddin Siddiqui you are right now. So is there any instance from those times of your days that you have incorporated this film, or is there any something which relatable जो हुआ है ऐसा कुछ? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स जब जूनियर आर्टिस्ट था तो परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या बोला मैं? मतलब बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में, यू नो, जब स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज़ की मारा मारी होती, बहुत कम चीज़ें। जब मैं छोटे मोटे रोल करता था तो लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, यू नो। गैस भी, अगर जैसे एक बार गैस का सिलेंडर लाने वाला था मैं, उसमें मुझे लाने में 2 साल लग गए थे, यू नो। पासपोर्ट बनने में 4 साल लग गए थे। तो इस तरह की दिक्कतें बहुत होती थी स्ट्रगल टाइम में। तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से नहीं मिलती थी, है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी एक्चुअली। और ऐसा कुछ है जो लाइन आपने इस फिल्म में डाली हो, आपने जो रियल लाइफ में बोली हो? हाँ, वो वाला था ना, वो फेस पे मत मारना भाई, यही ऑफिस है। वो अच्छा। हाँ, वो एक बार हुआ था मेरे साथ पंगा। तो बंदा मुझे पीट रहा था, मैं था पतला दुबला, कोई हाथ साफ करके चला जाता था। तो एक बंदा मुझे मार रहा था, भाई कहीं यहाँ मार ले, यहाँ मार ले, कहीं भी मार ले, फेस पे मत मारना। बोले क्यों? बोले यार यही तो ऑफिस है मेरा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो डायलॉग डाला है मैंने बाकायदा, और बहुत पॉपुलर भी हो गया वो। तो हुआ नहीं, बट ये घटना मेरे साथ रही है, हुआ। You know, Avneet, you started off as a dancer, as a child artist, and you have been part of television shows. There has been a balancing act which you have shown as a dancer, as an actor. But what gravitated you towards acting more than making that as a profession? That's a really nice question because I myself was confused कि मैं करूँगी क्या? Dancer. डांस करूँगी या बिकॉज आप दोनों पूरी तरीके से नहीं हो सकते। जब एक एक्टर है, कितना टाइम तो ऐसा होता है जब आपको टाइम ही नहीं होता आपकी खुद की पर्सनल चीज़ें भी, यू नो, आप कंप्लीट कर सको। तो डांसिंग साइड बाय साइड तो डेफिनेटली मैं अभी भी कर रही हूँ बिकॉज दैट्स द रीज़न वाई आई हैव कम हियर। सो आई थिंक दैट विल ऑलवेज स्टे विद मी, दैट विल नेवर लीव, एंड आई रियली डोंट वांट इट टू लीव एवर। तो मैं सीखना चाहती हूँ, मैं अभी भी कथक सीख रही हूँ, कथक करती हूँ मैं जाके अपने जो मेरे डांस गुरुजी हैं उनके साथ। So I think dance is the reason why I'm into acting, I would say, because when I learned Kathak, I had done a degree, I had done a course for 3 years. So I had given my practicals and my exams and everything, and actually I understood a lot of things about acting from Kathak because इतनी सारी अदाएं होती हैं और इतने सारे एक्सप्रेशंस होते हैं कथक में जो आपको सीखने मिलते हैं। एक्टिंग के लिए बहुत ही वो मदद करते हैं वो एक्सप्रेशंस। सो आई थिंक एक्टिंग तो थी हमेशा से ही मुझ में, बट वो एक्टिंग लाई डांस ने है मुझ में। सो आई थिंक डांस को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। And you both come from different school of thoughts and different generation of actors. So you have been an experienced actor. You have been here for more than 2 decades, and you are just starting off in the movies, especially. Right. Is there something that you both learned about each other that was kind of a delightful surprise and it stayed with you, like being on sets, like sir, something which you have seen from someone who is a young actor who is just starting off, जो आपको surprise लगा या बहुत अच्छा लगा उनका approach? आई थिंक सर को देख के मुझे ये समझ में आया कि
doesn't matter even if you reach that level, you always have to give your 100%, and it's not कि आप आप हैं तो हैं, अभी हम हो गया तो हो गया नहीं. He gives shots with all his hard work. He gives his 100% till the date, and I think that will never end. So that urge to do more and more and give your 100% is वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो एक बार ख़त्म हो गई तो आई डोंट थिंक आपको मज़ा भी आएगा जो आप काम कर रहे हो वो करने में. तो ये बात मैंने सर से बहुत सीखी है. द पैशन दैट ही हैज़ फॉर हिज क्राफ्ट एंड हिज वर्क एंड द डिसिप्लिन दैट ही स्टिल हैज़ फॉर हिज वर्क. सो आई डोंट वांट दीज टू थिंग्स टू फेड अवे एवर इन माई लाइफ व्हेन आई एम वर्किंग फ्यूचर में जाके. तो दीज आर द टू थिंग्स आई वुड टेक अवे फ्रॉम हिम. टेक अवे नहीं, आई वुड टेक फ्रॉम हिम. आई वुड वांट टू टेक अवे. लेके चली गई. अवनीत का क्या है कि जो मुझे अच्छा लगा जो लर्न किया कि क्योंकि गिव एंड टेक होता है हमेशा सीन तभी अच्छा बनता है जब अगर दोनों एक सेम उस पे हों, पेज पे हों. एक ने अगर थोड़ा सा ये सोच लिया अरे यार मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, और दूसरे ने सोच लिया मैं तो कुछ जानता है, सीन नहीं बन पाएगा. जो सीन बने इसमें वो इसीलिए बने क्योंकि हम लोग एक ही पेज पे थे. और ख़ास बात ये है कि अवनीत की ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, इनकी पहली फिल्म है ना. ऐसा लगता बहुत पहले से काम करते आ रही हैं. बहुत ही बड़े प्यार से ये एंटर हुई उसमें अपने कैरेक्टर में, और बहुत ही नेचुरली करती चली गई. जो बस क्योंकि क्या होता है ना कि बॉलीवुड में एक तरीका है परफॉर्मेंस करने का जो जैसे कमर्शियल फिल्मों में होती है, बहुत डायलॉग बाजी बोली जाती है और बहुत ही वो ओवर द टॉप लगते हैं. बट अवनीत का क्या था, जो जैसी है वो उसी तरीके से एक कैरेक्टर को लेके वो उसका नेचुरल तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया. वो कहीं भी लगेगा नहीं आपको ये कोई एक्ट कर रही हैं. ऐसा लगेगा इनबिल्ट है. जो कैरेक्टर जो इन्होंने किया टीकू का, वो लगता है कि वो इनबिल्ट है वो कैरेक्टर. और यही ख़ास सबसे अच्छी बात यही होती है कैरेक्टर की कि एक कैरेक्टर करना होता है, एक कैरेक्टर में रहना होता है. तो वो रही उस दौरान उस कैरेक्टर में वो, और बहुत नेचुरली था वो. तो वो अच्छा लगा था. थैंक यू वेरी मच. तारीफ सुन के पेट भर गया मेरा आज. आज खाना नहीं खाएंगे आप? लग तो नहीं रहा. आप मैं खाऊंगी, भूख लगी. भूख लगेगी नहीं आज, मैं बता रहा हूँ ना. तारीफ ही होने वाली है आज मेरी. आज मैं इतनी तारीफ खिलाऊंगा ना आपको. मीठी मीठी तारीफ. सर दिस ऐसा कुछ है नहीं जो आपका करना बचे. लाइक यू प्लेड अ कॉप, अ गैंगस्टर, अ सीरियल किलर, a dancer also and a ghost also in your work. At this point in time, is there something that you don't want to do? Like आपने पहले mention किया कि आप वेब सीरीज नहीं करना चाहेंगे अभी फिलहाल के लिए. तो ऐसा कब बोला था मैंने? बोला था पिछले साल जब मैंने आपको मैडम आप इंटरव्यू कोई भी उठा के देख लीजिए, वेब सीरीज मैंने बोला था 5-4 साल पहले बोला था. हाँ, कि तुम गैंग्स ऑफ वो क्या नाम था इसका, सीक्रेट गेम करके निकला था. मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका, अब नहीं करना चाहता मैं. ये बोला. So, अभी ऐसा कुछ है जो आप नहीं करना चाहते? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. There's no. क्योंकि बहुत ही एक्टर का जो है ना, हाँ ये होता है ज़रूर कि एक फेज, डिफरेंट फेजेस आती चली जाती हैं. मैं कुछ दूसरा तरीका सोच रहा हूँ करने का. जो तरीके से मैंने काम किया है, अब मैं कुछ नया तरीका ढूंढ रहा हूँ. तो उस तरीके से उस अप्रोच में काम करूँगा अभी. Thank you. And you started off in Hindi movies with Mardani, with playing Rani Mukherjee's niece, and you have a movie which is produced by Kangana Ranaut where you're opposite Nawaz. So is it kind of a bucket list also you have created, or how do you see yourself wanting to shape your career right now in the movies? I really go for the stories, and I think the character is really important for me. And thankfully what I wanted कि मेरा डेब्यू हो, एकदम एग्जैक्ट सेम चीज़ मुझे मिली. So I'm really lucky. I call myself really lucky that I got exact same role that I wanted as my debut, and I wouldn't want it any other way. This is something that I had, I had a dream about, और मुझे वही सेम चीज़ मिली है. So I think I sort of manifested that character in my life कि ऐसा मुझे कैरेक्टर मिले, और टीकू का कैरेक्टर मुझे मिल गया.
तो आगे भी मैं यही चाहूँगी कि इस तरीके के ही मुझे रोल्स मिले, ऐसे डिफरेंट रोल्स में ट्राई करूँ आगे जाके जितना हो सके, एंड दैट आई गिव माई बेस्ट एंड आई हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न, सो आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप लर्निंग एनी टाइम. So yeah, definitely maybe even women-centric roles. I would love to play something like that, and characters that have stories to tell, that have so many stories to explain. So मैं ऐसे कोई characters करना पसंद करूँगी future में भी मेरे films में. Yeah. बस ऐसे मिले मुझे roles और characters. I just hope. Thank you so much. It was great talking to you. All the best for Teku Vaishiri. Thank you so much. Thank you.